Good morning, students. Now we are starting new chapter number 3, cash flow and rate of return analysis. Okay. First of all, what is rate of return? So, if we have an organization and at the end of year, whatever the profit or loss occurred in our organization, that is rate of return. If profit is occurred, so it means cash flow increase, the terminal cash flow. And if loss is occurred, it means cash flow decrease, and that is terminal cash flow at the end of year. Now here for calculating rate of return analysis, here one formula is given to you. Rate of return means a current value minus initial value divided by initial value multiply 100. So with the help of this formula, we are calculating rate of return. So that is either a gain or loss of our investment. Okay, so rate of return investment, that is denoted by ROI, rate of return investment. So that is a short form of rate of return investment. Here with the help of examples, we will see how rate of return is calculated. So here see first example. What will be the rate of return if rupees 100 on cash becomes rupees 250 through cash or non-cash cycle during a year? Yes. So here it explains we have rupees 100 and after some times that becomes rupees 250 either in a cash form or in a non-cash form, or that is one kind of investment, so that is non-cash form. So we have to find out the rate of return. So here we have a formula. Rate of return is equal to current value minus initial value divided by initial value multiply 10. So here our current value becomes rupees 250 and initial value, that is we have a cash on hand, so that is rupees 100. So 250 minus 100 divided by 100, that is initial value, into 100. So here we got 150 percentage. Yes, so here rate of return is calculated, or rate means percentage. So here whatever the answer we are getting, that is written in a percentage. So here we are getting rate of return, that is 150 percentage. Now we will see next example, example number 2. What will be the rate of return if rupees 100 on hand becomes rupees 50 through cash or non-cash cycle during a year? Means here we have rupees 100, so that is our initial value. After some time it becomes only 50 rupees. So here what will be the rate of return? Yes, so here after some times it becomes rupees 50, means our current value is decreased from our initial value. Yes, so here our rate of return is our rate of return that we got in a minus sign. So here 50 minus 100 divided by 100 into 100. Yes, so here we got minus 50 percentage. Yes. Okay. So here rate of return that can be applied to any investment. For example, it may be a real estate, stocks, vehicles, bonds, fine arts, etc. Means any kind of investment, any kind of asset we have, so on that we are applying rate of return. It is used to measure a growth between two periods. Yes, so here what are the two periods? What is our initial value and what is our
next value or current value after some years. So these are the two periods. So between two periods we are uh, estimating a rate of return. Yes, it is used for many purposes like investment growth to year over year, changes in a company revenue. So if we are investing some rupees in our business, after some times what will be the value we are gaining? Yes, after deduction of salvage value, after deduction of depreciation. Yes, so for that we are using rate of return analysis. Okay, so here rate of return analysis, cash flow less than 1 year. Okay, so here if we are calculating rate of return analysis less than 1 year, then how can we calculate? So here a simple formula is given to you: current value minus initial value divided by initial value into 100. Previous formula, we are using the previous formula, but here we are adding some another proportion, that is months in a year divided by relevant months. Yes, so that will be elaborated in example 1 and example 2. So here we will see first example. What will be the rate of return if rupees 100 on cash becomes rupees 250 through cash non-cash cycle after 5 months? Means here we have to find out rate of return for 5 months, not years. Yes, so same way, current value minus initial value divided by initial value into months in a year, means how many months are there in a year. Yes, and relevant months means how many months we have given in our example. So that is written in 11, sorry, relevant months place into 100. So 250 minus 100 divided by 100 into months in a year. So means there are 12 months, so that's why we have written 12. So 12 divided by 5, because here we are calculating this rate of return for 5 months, so that's why we are written 5. So 12 by 5 into 100. So here we are getting 360 percentage as a rate of return. Now see second example. What will be the rate of return if rupees 100 on cash becomes 50 after cash or non-cash cycle after 5 months? So same formula we have to use in second example, but here uh, our current value, that is 50. Yes, instead sorry, except of current value all the values are same. Yes, so here 50 minus 100 divided by 100 into 12 by 5 into 100. Yes, so here we are getting minus 120 percentage. Yes, because after sometimes our value, our money is decreased. We have 100 rupees, after some time we have only 50 rupees. Yes, so that's why we are getting rate of return minus 120 percentage. Now next point is rate of return for cash flow more than 1 year. Yes, in a previous slide we have seen how can we calculate ROR, means rate of return less than 1 year. Now we will see if more than 1 year is given, then how can we calculate rate of return. Yes, so here cash flow is calculating during operating life of project as a minimum attractive rate of return or annual average cost of capital. So all these things are calculating if rate of return is calculated more than 1 year. So if a project is very lengthy, like, yes, so like a project is based a project is regarding for highway, dam, power plant building or large machinery or vehicles transportation, so its life is project life is more than 1 year.
So for that we are calculating rate of return. So here these are the formulas of rate of return. How can we calculate? So we will see one by one. So first, compound interest. So we have already seen that if a project life is more than 1 year or more than uh, 4 or 5 years more, so at that time simple interest is not calculated, compound interest is calculated. So here we are finding the compound amount. So here a simple formula is given to us. F is equal to P in bracket 1 plus I raised to n, and a second formula is A in bracket 1 plus I raised to n minus 1 divided by I. Now we are finding a sinking fund. Yes, so for sinking fund we have a formula. So A is equal to F in bracket I divided by 1 plus I raised to n minus 1. So this is the formula of sinking fund. Next formula is capital recovery. How can we recover our capital after some years? Yes, so A equal to P in a bracket I again in a bracket 1 plus I raised to n divided by in a bracket 1 plus I raised to n minus 1. Now what is F, A, P, I? So A means end of year cash receipt of or disbursement, means at the end of year how what amount we will get, so that is A. F मीन्स फ्यूचर वर्थ, फ्यूचर में हमें कितने पैसे मिलेंगे उसकी बात कर रहे हैं. I फॉर इंटरेस्ट रेट. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स. P इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, means presently what is the amount of that particular project, so that is present worth. So present amount is calculating using this formula. P is equal to A in bracket 1 plus I raised to n minus 1 divided by I into 1 plus I raised to n. Another formula, that is F in bracket 1 divided by 1 plus I raised to n. So all these formula we will see with example. So you will get a clear idea, you will get this concept easily. Okay, so here we will see first example. A company is trying to diversify its business in a new product life. The life of a project is 10 years with no salvage value at the end of life. The initial outlay of a project is rupees 20 lakhs. The annual net profit is 3,50,000. Find the rate of return for new business. Yes, so here initially we have 20 lakh rupees. Here after end of 10 years we are not getting any salvage value, means अगर हमारे पास कुछ एसेट है, हम 20 साल के बाद उसको सेल कर रहे हैं तो हमें कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, दैट इज सैल्वेज वैल्यू. यस, एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स एंड हमारा जो प्रॉफिट है एनुअल प्रॉफिट, यस, दैट इज रुपीज़ 3,50,000 रुपीज़. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो प्रेजेंट वर्थ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमें 10 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे देखो हमें परसेंटेज कुछ दिए नहीं है. ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है. तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज परसेंटेज है, ठीक है, वो हम लेंगे. तो यहाँ पे हमने लिए है 10, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है वो, प्रेजेंट वर्थ वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन 10%. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई की है कि P प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस के लिए तो -P + A
इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दिए है। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू है वो 1/1 ईयर वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे पी के आगे माइनस की साइन की है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है 20 लाख, सो माइनस 20 लाख प्लस 350 वो क्या है, तो 350 है वो हमारी एनुअल इनकम हुई। ठीक है, तो हमने 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, मतलब हमारी जेब से वो जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस 20 लैक्स हुए। 350 लैक्स है, 3,50,000 रुपीज़ है वो हमारा नेट प्रॉफिट है जो एनुअली हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया प्लस 3,50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आई फॉर हमने यहाँ पे 10% लिए तो इसीलिए 0.1 किया। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर हमने 10 ईयर्स है मतलब रेज टू एन, सो रेज टू 10 माइनस एन और डिवाइडेड बाय 0.1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू 10। ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक है, वो हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1.1 रेज टू 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इन ब्रैकेट 1.1 रेज टू 10। ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, होल ब्रैकेट का कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 6.144। ठीक है, सो दैट इज़ मल्टीप्लाइड विथ 3,50,000 उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिटर्न एज अ 10%, सो एट दैट टाइम आवर प्रेजेंट वर्थ वैल्यू दैट इज़ 1,50,598.48। ठीक है, तो ये हमें मिलती है। अब हमें क्या करना है, 11% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिए हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें 3% लेने हैं और उसका एवरेज करके हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न। यस, तो जब परसेंटेज नहीं दिए हैं तो हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना है। अप्रोक्सीमेटली हमें लेना है 10, 11 एंड 12। यस, अब हम 11% के हिसाब से हम करेंगे, वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है, बट इंस्टेड ऑफ 10% वी हैव टू राइट डाउन 0.11। ओके, द सेम कैलकुलेशन इज डन बेस्ड ऑन प्रीवियस कैलकुलेशन, सो आफ्टर all calculation based on 11% we are getting 61,231.20. Now the same calculation is done using 12%. So here we are getting minus 22,421.94. So we are here we have done these three calculation. Yes, based on these three calculations we are making an average of these three. Yes, so now it's a time to find out interest. Yes, so how can we find out the interest, so here minus 10% into present worth of 10% minus 0 divided by 10% minus 12% into 2%, मतलब रेशियो फाइंड आउट किया है कि 10 माइनस 12%, तो उसका जो फाइंड आउट रेशियो है मतलब उसका जो कैलकुलेशन हो गया हमें क्या मिलेगा, तो 2% मिलेगा, तो वो हमने लिखा है 0.02। और जो प्रेजेंट वर्थ मतलब 10% के हिसाब से प्रेजेंट वर्थ वैल्यू क्या मिली थी, तो 1,50,598। ठीक है, और 12% के हिसाब से तो माइनस 22,421.94, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है और सबका कैलकुलेशन करके हमें मिलता है 0.1174। उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो रेट ऑफ रिटर्न जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा 11.74%। ठीक है, तो वो हमें मिला। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू यहाँ पे दिखाया है कि
4% है जो हमें मिला है। तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखा कि सबका 3 का हमें एवरेज लिया और कैसे मतलब 10 और 12 के बीच में जो 11 आता है, ठीक है, तो उसका एवरेज हमने फाइंड आउट किया तो वो हमें मिला 11.74%, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1 का कैलकुलेशन। हमें रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस मतलब रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड आउट करना था। हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिए थे तो हमने यहाँ पे 3% लिए हैं, 10%, 11% एंड 12%, ठीक है। और उसके बेस पे हमने इंटरेस्ट रेट है वो फाइंड आउट किया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अगर साल्वेज वैल्यू दी है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म एनुअल कॉस्ट व्हेन अ स्टूडेंट बॉट 1000 रुपीज़ वर्थ ऑफ होम फर्नीचर विथ 7% इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड लाइफ टू लास्ट 10 years। यस, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें दी है कि साल्वेज वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हमें पहले दिखाया है कि यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दी है। स्क्रैप वैल्यू मतलब दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए साल्वेज वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, जो भंगार में फाइनली जो हमें चीज़ मिलती है, जो चीज़ का हमने यूज़ कर दिया है और आफ्टर some time what will be the amount is getting from selling that value, yes, so that is also considered as a scrap value। तो यहाँ पे दो केस दिए हैं कि अगर साल्वेज वैल्यू नहीं है विदाउट स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और विथ स्क्रैप वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस क्या है कि विदाउट स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है, तो A = P in bracket I in bracket 1 plus I raised to n divided by 1 plus I raised to n minus 1, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट स्क्रैप वैल्यू से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ इंटू 7% इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.07 रेज टू 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.07 रेज टू 10 माइनस 1। तो हमें वैल्यू मिलते हैं 142.37, ठीक है। ये विदाउट साल्वेज वैल्यू है, मतलब विदाउट स्क्रैप वैल्यू। अब हम स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो सपोज स्क्रैप वैल्यू है वो 200 है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्या है, जो पहला वाला जो था विदाउट स्क्रैप वैल्यू वो तो रखना ही है, फिर क्या करना है -f करके वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखनी है, बट ऊपर आएगा f इन ब्रैकेट I रेज टू 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेम पहले वाला जो था, ठीक है, विदाउट स्क्रैप वैल्यू में जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, फिर -f की वैल्यू क्या है 200, ठीक है। फिर I की वैल्यू क्या है 0.07 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07 रेज टू 10 माइनस 1, तो हमें मिलती है 127.89, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी फॉर्मूला है वो मेमोराइज़ करनी पड़ेगी कि अगर साल्वेज वैल्यू नहीं है तो फॉर्मूला क्या है, साल्वेज वैल्यू है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करनी है, रेट ऑफ रिटर्न है इन मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, ईयर में करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वो सारी आपको अप्लाई करनी है। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आपको 3% मतलब 3 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज लेने हैं, उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और सॉरी उसका एवरेज फाइंड आउट करके वो हम आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा जो मैंने बताया उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस इट इज़ गिवन टू द टाइम पीरियड कवर्ड बाय द एनालिसिस पीरियड दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि इंडस्ट्रीज विथ मोर स्टेबल टेक्नोलॉजीज लाइक स्टील इंडस्ट्रीज, सो 10 to 20 years। तो यहाँ पे जब हम एनुअल एनालिसिस कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो कैश फ्लो एनालिसिस है वो डिपेंड्स करे कि किस टाइप की इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है तो इट टेक्स 10 to 20 years, यस। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है तो इट टेक्स
2 to 5 years. If that is government organizations like banks, so it takes 50 years. So based on this analysis period, a situation is different and different alternatives are selected. For example, useful life for each alternative equal to analysis period, that is differ to the analysis period, or infinite analysis period. Yes, so we will see these with the help of example. तो यहाँ पे फर्स्ट है कि यूजुअल लाइफ ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव इक्वल्स टू द एनालिसिस पीरियड. यस, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो उस एग्जांपल के बेस पे देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होता है. यस, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, अ फर्म इज कंसिडरिंग विच ऑफ टू मैकेनिकल डिवाइसेस टू इंस्टॉल टू रिड्यूस कॉस्ट. Both devices have a useful lives of 5 years and no salvage value. Device A cost 1000 rupees and can be expected to result in 300 rupees saving annually. Device B cost 1350 rupees and will provide a cost saving of 300 rupees for the first year but will increase 50 annually, making the second year savings 350, third year savings 400 and so on. With interest at 7%, which device should firm a purchase? Yes, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक फर्म है, उसको दो मैकेनिकल डिवाइसेस है वो इंस्टॉल करने हैं टू रिड्यूस कॉस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों डिवाइस की लाइफ है वो 5 साल की है, और यहाँ पे जब हम उस डिवाइस को 5 साल के बाद अगर हम सेल करते हैं तो हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, देयर इज़ नो साल्वेज वैल्यू. ठीक है, अब डिवाइस ए है तो उसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज़. ठीक है, एंड 300 रुपीज़ सेविंग्स एन्युअली. ठीक है, एन्युअली वो 300 कमा के हमें देता है. जबकि डिवाइस बी है उसकी कॉस्ट है 1350 रुपीज़, और वो जो सेविंग करता है वो मतलब फर्स्ट ईयर 300 मिलता है, सेकंड ईयर 350, थर्ड ईयर है वो 400 मिलता है. ठीक है, और फिफ्थ ईयर 450, इस तरह से मिलता है उसका सेविंग. और यहाँ पे इंटरेस्ट है वो 7% दिया है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये दो डिवाइस हमारे पास है. ठीक है, अब इस दो डिवाइस मतलब ऑल्टरनेटिव हमें दिए कि दो डिवाइस की चॉइस दी है, और हमें कौन सा डिवाइस परचेज़ करना चाहिए जो हमारे फर्म के लिए बेनिफिशियल है. यस, तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, तो यहाँ पे है पे प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए. यस, सो माइनस पी प्लस ए, जो हमने प्रीवियस फार्मूला जो यूज़ की थी वही है. ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 1000 रुपीज़ माइनस क्यों करते, क्योंकि हमें पहले वो डिवाइस जब हम परचेज़ करते हैं तो हमारे पास से वो 1000 रुपीज़ है वो चले जाते हैं, डिडक्ट मतलब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कैश चली गई. सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग माइनस 1000 रुपीज़ प्लस 300, दैट इज़ अवर सेविंग. इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.7 माइनस 1. 5 क्या है, हमारी लाइफ है, मतलब जो ये डिवाइस है उसकी लाइफ है 5 years. इट विल वर्क अप टू 5 years. Divided by 0.07 in bracket 1 plus 0.07 raised to 5. ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेशन करते तो हमें मिलता है 230.05. ये डिवाइस ए का कैलकुलेशन है. नाउ वी कम टू कैलकुलेशन फॉर डिवाइस बी. यस, तो अब डिवाइस बी में क्या है. ठीक है, हमें फर्स्ट टाइम हमने जो सारी फार्मूला देखी थी, ठीक है, तो बहुत सारी फार्मूला थी, तो उसमें ये वाली भी फार्मूला थी. तो क्या है, तो वो कंडीशन के हिसाब से हमें ये फार्मूला अप्लाई करनी रहती है. तो यहाँ पे ऐसा बोले कि हर एक टाइम पे सेविंग है वो सेम नहीं है. फर्स्ट ईयर 300 मिलता है, सेकंड ईयर सेविंग है वो 350 मिलता है, फिर 400 मिलता है. तो कैसे करेंगे, तो मतलब यहाँ पे 50-50 रुपीज़ का गैप आता है, मतलब 50-50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं. यस, तो कैसे करेंगे, तो माइनस पी प्लस ए, जो पहले वाली जो फॉर्मूला थी वो सेम है, वही करना है. चेंज कहाँ पे आते हो, तो प्लस जी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस आई एन माइनस 1 एंड आई रेज टू 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन. ठीक है, तो क्या करना है, पहली जो फॉर्मूला थी उसका तो सेम कैलकुलेशन है, पर यहाँ पे सिर्फ पी की वैल्यू चेंज होगी. माइनस 1350 प्लस 300 मिलता है फर्स्ट टाइम हमें सेविंग,
in bracket 1 into 0.7 raised to 5 minus 1 divided by 0.07 in bracket 1 plus 0.07 raised to 5 plus 50. 50 क्या है, एनुअली इंक्रीज हो रहा है, तो 50 in bracket 1 plus 0.07 raised to 5 minus 5 into 0.07 means I into n. Yes, minus 1 divided by 0.07 raised to 2 divided by 1 plus 0.07 divide raised to 5. ठीक है, तो सबका कैलकुलेशन मिला के हमें फाइनली आंसर मिलता है 262.38. ठीक है, और डिवाइस ए का मिलता है 230.05. ठीक है, तो यहाँ पे अब उसकी प्रेजेंट जो वैल्यू है, ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, तो वो किस तरह से मिलेगी, तो यहाँ पे 230 मिल रहा है फॉर ए और फॉर बी के लिए 262.38. तो यहाँ पे बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए हम डिवाइस बी है वो हमारी फर्म के लिए परचेज करना पसंद करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है यूज़फुल लाइफ ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव डिफ़र फॉर एनालिसिस पीरियड. अब इसमें क्या है कि सपोज़ एक डिवाइस है या एक इक्विपमेंट है, उसकी लाइफ है वो 3 इयर्स है और दूसरे की लाइफ है वो 6 इयर्स है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि दीज ऑल्टरनेटिव्स डिफ़र फ्रॉम एनालिसिस पीरियड, मतलब दोनों चीज़ का लाइफ पीरियड है वो सेम नहीं है. ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में देखा तो दोनों की लाइफ है वो 5 इयर्स की थी, बट यहाँ पे ऐसा बोले कि दोनों डिवाइस है, दोनों डिवाइस की लाइफ है वो अलग अलग है. मतलब one device having a 5 years life or second device having 10 years life. Then how can we calculate and how can we decide which device is preferable to purchase for our organization? Yes, so we will see explain. I will explain this concept with one example. See, here one example is given to you. A purchasing agent buy some new equipment for mailroom. Two manufacturers have provided bids mentioned below. Manufacturer A है, yes, so its cost is 1500 rupees, usual life for 5 years, salvage value that is rupees 200. Manufacturer B cost 1600 rupees, usual life that is for 10 years and salvage value is 325 rupees. See, here both usual life are not same. Yes, one for 5 years and second for 10 years. Now, how can we calculate? See, first we will see for A. So, P minus F in bracket 1 divided by 1 plus I raised to n plus f. ये फॉर्मूला हमने पहले यूज़ की है. यस, तो यहाँ पे जो 5 इयर्स है, अब देखो यहाँ पे है वो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट मैन्युफैक्चर है उसकी लाइफ सेकंड मैन्युफैक्चर से आधी है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उससे इक्वल करना है. तो इसीलिए ये कैलकुलेशन है तो वो हमने 2 बार किया, P माइनस एफ. ठीक है, तो यही चीज़ हमने 2 बार की. देखो यहाँ पे 1500 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 1 सॉरी इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.07 रेज टू 5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस वही चीज़ हमने फिर से की. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम मैन्युफैक्चर बी की जो लाइफ है उसके साथ कंपेयर करें, तो इसलिए हमने उसको डबल कर दिया. सो आफ्टर पुटिंग ऑल वैल्यूज़ वी आर गेटिंग 2284. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है कि बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें मिलता है 1434.78.
ठीक है। तो बी की जो वैल्यू है वो सारी हमने रख दी, ठीक है। कॉस्ट 1600 रुपीज़ है, ठीक है। सैलवेज वैल्यू है दैट इज़ 325, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एफ, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग ऑल कैलकुलेशन फॉर बी वी आर गेटिंग 1434। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि परचेजिंग जो एजेंट है वो उसको 2 इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली हमें क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मतलब कम मिलती है, ठीक है, जो सस्ता पड़ता है तो वो लेगा। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू है 1434 और ए की वैल्यू है 2284, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बी जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास से हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट है वो परचेज करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।